Hi there everyone, this is Abhishek back again with another tutorial. आज की वीडियो पर हम कंप्लीट एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग के रोड मैप के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके माइंड में एक कंफ्यूजन जरूर होगा, शुड आई लर्न सी प्रोग्रामिंग फर्स्ट, या फिर कितनी सी प्रोग्रामिंग मुझे आनी चाहिए अगर मैं एम्बेडेड में अपना कैरियर स्टार्ट करना चाह रहा हूँ तो, या फिर मैं किस माइक्रो कंट्रोलर के साथ में एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग को पढ़ना स्टार्ट करूं, और कौन कौन से एम्बेडेड सी के कॉन्सेप्ट हैं जो आपको आने चाहिए। तो मैं आज इन्हीं सारी चीजों को एक करेक्ट ऑर्डर पर आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सी प्रोग्रामिंग फाउंडेशन की, तो फर्स्ट यू नीड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन सी प्रोग्रामिंग। स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, जिसमें आपको समझना है कि वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं, और डेटा टाइप का कैसे यूज करना है, कैसे वेरिएबल क्रिएट करना है, और कहां पर कौन सा डेटा टाइप यूज करना है। ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना है, कंडीशंस, इफ, इल्स, इलिफ, ये कंडीशंस क्या हैं, लूप्स के बारे में पढ़ना है, एंड हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन। इसके बाद आपको एरेज, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर एंड इनम, इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, बिकॉज आप किसी सेंसर के साथ में काम करेंगे तो आपको एरेज, स्ट्रिंग्स के साथ में काम करना पड़ेगा। सो यू शुड बी कंफर्टेबल राइटिंग सी विदाउट कॉपिंग कोड। सो आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने होंगे इन द फंडामेंटल ऑफ सी प्रोग्रामिंग। बट रिमेंबर रखें कि आप इन टॉपिक्स को एज अ थ्योरी ना पढ़ करके you have to write some small programs yourself. For example, take a problem, think about the logic, write the code, compile the code, find the error and fix them. Your first goal is simple. You should be comfortable writing C without copying code. So when you have built this foundation, move to the next stage. And in the next stage you have to learn about the pointers, जहां पर बहुत सारे बिगिनर्स स्ट्रगल करते हैं, बिकॉज पॉइंटर्स को थोड़ा सा टफेस्ट माना जाता है, एंड यहाँ से आपकी एक सीरियस एम्बेडेड डेवलपर की जर्नी स्टार्ट होती है। सो आपको यहाँ पर कवर करने हैं एड्रेसेज एंड डी रिफरेंसिंग, पॉइंटर्स एंड एरेज, पॉइंटर्स विद फंक्शन, पॉइंटर्स विद स्ट्रक्चर and later function pointer. Why? Because embedded system work heavily with the memory address, buffer, registers and callbacks. You don't need to become an expert in every advanced pointer concept immediately, but you must understand what is an address, what does a pointer store, what happens when I dereference it. So जब आपके pointers के concept clear हो जाएं, then you have to move to the memory and embedded C concept. And here you have to learn about the flash and RAM, stack and heap concept, global, static and local variables. Then learn important C keywords such as const keyword, static, extern and volatile. Especially understand volatile because it appears frequently when working with the hardware, registers and interrupts. So at this stage, don't just think about whether your program works. Start thinking, where is my data stored? How much memory is it using? Who can modify this variable? This way of thinking is extremely important in embedded development. Then you have to move for the bit manipulations and registers. Learn AND, OR, XOR, NOT and bit shifting. Then learn how to set a bit, clear a bit, toggle a bit and check a bit. Why is this important? Because microcontrollers control their hardware using registers. GPIO, timers, UART, ADC, DAC and other peripherals are controlled through registers. So you have to master the bit manipulation, and then you have to move for the actual microcontroller learning. You can start with the STM32, you can start with the PIC microcontroller, but in the modern industry you have to start with the STM32 because STM32 has a demand in the industry. और यहाँ पर दो चीजें आती हैं। अगर आपको अपना कैरियर एज एन एम्बेडेड फर्मवेयर डेवलपर, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाना है, देन आप STM32 से स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको एज एन IoT इंजीनियर अपने कैरियर को शिफ्ट करना है, कि आपको क्लियर है कि मैं IoT की फील्ड पर अच्छे से अपना कैरियर बनाना चाहता हूं, देन आप ESP32 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ESP32 इज हैव एन बिल्ट इन वाईफाई एंड ब्लूटूथ। वो वहां पर नेटवर्क कनेक्टिविटी के काफी अच्छे फीचर्स हैं, तो वहां पर आप ESP32 के साथ में जा सकते हैं। बट अगर आपको प्रोफेशनल एम्बेडेड डेवलपमेंट करना है, देन यू हैव टू स्टार्ट विद द STM32 एंड लर्न अबाउट द GPIO, टाइमर, PWM, ADC
and then you have to learn about the communication protocol such as UART protocol, I2C protocol, SPI protocol and DMA. Don't try to learn everything together. आपको वन कॉन्सेप्ट को वन टाइम पर कवर करना है, ऐसा नहीं कि आप दो तीन कॉन्सेप्ट को एक ही टाइम पर कवर कर रहे हैं। अगर आप UART कम्युनिकेशन को पढ़ रहे हैं तो आप UART कम्युनिकेशन को बहुत अच्छी से मास्टर करिए, एंड देन यू हैव टू मूव फॉर द I2C कम्युनिकेशन, एंड देन यू हैव टू मूव फॉर द SPI कम्युनिकेशन। सो जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं पहले उसको कवर करें, एंड देन उसके बाद आप दूसरे कॉन्सेप्ट पर मूव करें। एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंटरप्ट एंड द ड्राइवर डेवलपमेंट। In the interrupt, you have to learn about the IFR, interrupt priority, and the interrupt latency. Then learn driver development. For example, take a FinFET. Instead of simply downloading a library, you have to read the data feed, create your own driver. Your application might eventually look like FinFET init, FinFET read, while the actual implementation stays inside your driver. This teaches you something very important: how to convert a hardware data feed into reusable software. That is a core embedded C skill, because debugging is a most important skill when you are an embedded software engineer. क्योंकि जब आप कोड लिख रहे हैं या फिर हार्डवेयर के साथ में काम करें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ेगा। किसी भी पिन को इनिशियलाइज करेंगे तो आप हार्डवेयर API का यूज कर सकते हैं, HL प्रोग्रामिंग का यूज कर सकते हैं, बट आपको रजिस्टर लेवल प्रोग्रामिंग आनी चाहिए जब आप मल्टीपल बोर्ड्स के साथ में काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने किसी एक बोर्ड के साथ में काम किया, सपोज दैट आपने STM32 F441 बोर्ड के साथ में काम किया एंड नाउ आपको दिया गया F446 बोर्ड, तो आपको उसके पिन समझने होंगे, और पिन कहाँ से समझेंगे आप? डेटा शीट पढ़नी होगी, और कौन कौन से पेरिफेरल्स हैं, कौन से पोर्ट में कौन सा फीचर दिया हुआ है, देन यू हैव टू लर्न द डेटा शीट फर्स्ट। तो आपको डेटा शीट पढ़ने की स्किल को डेवलप करना होगा, and then you have to move for the modular programming and art of concept. And in the modular programming you have to separate your code into modules. आपने अगर सेंसर के साथ में काम किया है तो you have to make a sensor.c फाइल। अगर आपने कोई कम्युनिकेशन लिखा है, सपोज दैट UART कम्युनिकेशन के साथ में आपने काम किया है, then you have to create a separate UART.c, UART.h फाइल। एंड अगर आपने SPI कम्युनिकेशन के साथ में काम किया है, देन यू हैव टू क्रिएट अ SPI.c फाइल, SPI.h फाइल। तो इस तरीके से आपको अपने कोड को मल्टीपल पार्ट पर डिवाइड करना है एंड उसके साथ में आपको काम करना है। देन मूव टू एन आर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट सच एज फ्री आर्ट ऑफ। बहुत सारे आर्ट ऑफ अवेलेबल है मार्केट में, बट मोस्ट कॉमनली बहुत ही ज़्यादा यूज करने वाला फ्री आर्ट ऑफ है। तो आप फ्री आर्ट ऑफ के अंदर लर्न कर सकते हैं टास्क क्या होते हैं, शेड्यूलिंग क्या होती है, प्रायोरिटीज क्या होती हैं, क्यूज, सेमाफोर, म्यूटेक्स एंड टास्क नोटिफिकेशन। बट रिमेंबर द ऑर्डर: फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेयर मेटल प्रोग्रामिंग एंड इंटरप्ट, then learn art of. Otherwise free art of will just become a collection of APIs to memorize. And then finally start developing professional engineering skills. Learn about the debugging as I discussed. Finally start developing professional engineering skill. यहाँ पर आपको debugging सीखनी होगी कि अगर आपका कोड में कोई एरर आ रही तो वो एरर क्यों आ रही है और उस एरर को कैसे सॉल्व करना है। आपको डेटा फीड पढ़नी पड़ेगी, डेटा फीड से रजिस्टर मैपिंग देखना पड़ेगा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। तो आपको डिबगिंग आनी चाहिए, गिट आना चाहिए। प्रोफेशनल स्किल की हम बात कर रहे हैं क्योंकि गिट आना चाहिए, क्योंकि आप अकेले तो काम नहीं कर रहे होंगे, आप एक टीम के साथ में काम कर रहे होंगे। सो यू हैव टू सेपरेट द वर्क। सो अगर आपको काम दिया गया है कि आप UART ड्राइवर लिखिए, तो आप UART ड्राइवर लिख रहे होंगे। आपके कलीग जो होंगे हो सकता है वो SPI का ड्राइवर लिख रहे हो सकता है कोई I2C का ड्राइवर लिख रहा हो सकता है कोई सेंसर का कोड लिख रहा हो और बाद में सारे कोड मर्ज हो रहे हो। सो यू हैव टू लर्न द गिट एंड देन कोड रिव्यूज भी आपको आना चाहिए, टेस्टिंग भी आनी चाहिए, स्टैटिक एनालिसिस एंड कोडिंग स्टैंडर्ड्स, बिकॉज इंडस्ट्री में कोडिंग स्टैंडर्ड्स बहुत ही ज़्यादा फॉलो होते हैं। एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द ब्रेक पॉइंट, वॉच वेरिएबल्स, कॉल स्टैक एंड द मेमोरी इंस्पेक्शन एंड हार्डवेयर डिबगिंग। If you are targeting automotive or safety critical industries, also learn the fundamentals of MIFRA and then you have to move for the project. अब प्रोजेक्ट्स की बात आती है तो यहाँ पर अगर आप रिज्यूम लेवल के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, देन यू हैव टू बिल्ड अ वेरी अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट। आप कोई एयर क्वालिटी मॉनिटर बना सकते हैं, आप कोई ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट कर सकते हैं, सपोज दैट कि
अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाते हैं तो आप अपने घर का एग्जांपल ले लो। आपके घर पर 3-4 3 टू 4 बीएचके होम होगा। आप सपोज करिए कि हर रूम पर आपने कुछ सेंसर और कुछ अप्लायंसेज को कंट्रोल किया है एंड आपने एक सेंट्रल डैशबोर्ड बनाया है और उस डैशबोर्ड पर सभी रूम्स का डेटा किसी मॉडबस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के थ्रू आ रहा है, लोरावैन के थ्रू आ रहा है या अदर कम्युनिकेशन मेथड के थ्रू आ रहा है और वहाँ पर आप सारा डेटा देख पा रहे हैं। ये एक बहुत ही प्रोफेशनल एम्बेडेड लेवल का प्रोजेक्ट होगा, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, कि आपने 3 सपोज दैट 3 बीएचके पर आपने टेम्परेचर सेंसर इंस्टॉल किया या फिर किसी गैस का सेंसर इंस्टॉल किया, आपने 1-2 लाइट्स भी उससे कंट्रोल की। अब 3-4 रूम का डेटा आप एक ही डैशबोर्ड पर देख पा रहे हो और यहाँ से आप कंट्रोल भी कर सकते हो चीज़ों को। तो ये आप मॉडबस के थ्रू भी कर सकते हो। मॉडबस में आप वायर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नेटवर्किंग का यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें आप ESP32 का यूज़ कर सकते हैं वाई-फाई के लिए और यहाँ पे ESP नाउ कम्युनिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड हैं। आप कोई अच्छा प्रोजेक्ट बनाएँ। ऐसा नहीं करना आपको कि आपने किसी यूट्यूब का ट्यूटोरियल देखा, आपने प्रोजेक्ट किया, बहुत ही नॉर्मल सा प्रोजेक्ट किया और वही प्रोजेक्ट आप प्रेज़ेंट कर रहे हैं इंटरव्यूअर के सामने। दिस इज़ नॉट अ राइट अप्रोच। यू हैव टू प्रेज़ेंट अ वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट और तभी इंटरव्यूअर आपसे हैप्पी होगा कि हाँ, इस बंदे ने कुछ अच्छा किया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, सर्च करें आप और बिल्ड करें, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट करें और ज़्यादातर आप इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स करें। अगर आप किसी इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, हर इंडस्ट्री से रिलेटेड और हर बंदे की एक चॉइस होती है कि वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पर जाएगा या फिर नेटवर्किंग इंडस्ट्री में, क्लाउड इंडस्ट्री पर जाएगा या फिर आईओटी बेस्ड इंडस्ट्री पर जाएगा। तो आप जिस इंडस्ट्री पर जा रहे हैं, उस इंडस्ट्री को टारगेट करते हुए यू हैव टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट। अगर आप ऑटोमोटिव पर जा रहे हैं तो 3-4 रिले लीजिए, कुछ मोटर्स लीजिए और कुछ सर्वो मोटर्स के साथ में या फिर आप स्टेपर मोटर्स ले सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ सेंसर के साथ में काम कर सकते हैं, कुछ ऑटोमेशन टाइप का प्रोजेक्ट बिल्ड करें। अगर आप आईओटी की फील्ड पर जाना चाहते हैं तो कुछ आप एयर क्वालिटी से रिलेटेड कोई अच्छा डैशबोर्ड बनाइए, उसका डेटा भेजिए आप AWS IoT कोर पर या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर IoT पर और उसको ग्राफाना या फिर नोड-रेड का यूज़ करते हुए एक अच्छा-सा डैशबोर्ड दिखाइए। तो वो एक इंडस्ट्री लेवल के अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं। और किसी वीडियो पर हम कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बात करेंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड फ्रॉम ज़ीरो, डोंट ट्राई टू लर्न एवरीथिंग एट द सेम टाइम। Follow the sequence. First build your C foundation, then master pointers and memory, then learn embedded C and microcontroller peripherals. After that, move into communication protocols and the driver development, then learn 3 RTOS and professional embedded development. And most important, keep building projects along the way because watching tutorials gives you knowledge, but building and debugging projects gives you engineering skills. So if you are serious about becoming an embedded system engineer, subscribe to the MyTech Learner. We will continue with embedded C, STM32, ESP32, FreeRTOS, communication protocols, IoT, and real-world embedded projects. So I will see you in the next video. Thanks for watching, guys.